क्रिमिनल बोलते हैं सर। जो फर्स्ट आप कुछ भी बोलिए, एनएमसी में क्या लिखा हुआ है? आप अपने मन से कुछ भी बोलेंगे, अपना कानून चलाएंगे। क्यों नहीं लिया आप एग्जाम? किस पोस्ट पे हैं आप? और इससे बड़े आपको कोई अधिकारी नहीं मिले बुलवाने के लिए। यू हैव कॉल्ड यूजलेस फेलो। बताइए कितने इतनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज क्यों हैं? कहीं पे आप पास कर रहे हैं, किसी फेल कर रहे हैं, किसी में अटेंडेंस अब्सेंट बता रहे हैं और मार्क्स भी दे रहे हैं। क्यों ऐसा? सोचते हैं कि हम जैसा चाहें वैसा कॉलेज चलाएंगे, हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। यूनिवर्सिटी तो कुछ करती ही नहीं है। यूनिवर्सिटी को तो यही पता नहीं कि क्यों नोटिफिकेशन में लिखते हैं आप सर, प्रॉपर्ली उनको नोटिफाई कर दो। तो यूनिवर्सिटी को तो खुद ही पता नहीं होगा कितनी मेडिकल कॉलेज हैं। 2024 को पहले लिख दीजिए सर, आप पहले सारे started from 511. They made up these documents in order to show that the classes have been conducted from 111, and in a very haphazard manner, serial number 02, 21, 31, 36 इनका जो नाम जिनका हमने emphasize किया था कि ये लोगों की short attendance है, despite they are having short attendance, they have been allowed to appear in examination. उन्होंने उनका एक्स्ट्रा क्लासेस लिए विदाउट देयर बीइंग एनी सिग्नेचर ऑफ एनी ऑफ द स्टूडेंट, एंड द क्लासेस हैव बीन कंडक्टेड. The same page में kindly be seen. Next page देखिए सर, 93 में. This has been notice has been issued on 1/11/2023, stating that the extra classes in orthopedics for those students who are ineligible, how they have been prepared afterwards can be seen from the notice itself, are ineligible for university examination. For the first time, the impugned list in this particular petition, my lord, the list of ineligible students have been published on 19/12/2023. All these documents have been prepared afterwards in order to mislead the court when we made an allegation that there is a discrimination in allowing certain students to appear in examination, and we have been cherry-picked and have been detained. And in the whole petition, we have taken this particular ground. We are not asking for relaxation of rules, my lord. We are bound by the rules, but the university is also bound by the rules. University should also be conducting proper number of classes as per NMC guidelines, proper number of retest. You are not taking, sir, in एक retest का शेड्यूल मंगा लीजिए, एक रीटेस्ट का एग्जामिनेशन का रिजल्ट, एक इंटरनल असेसमेंट पार्ट 1 में अगर इफ अ स्टूडेंट हैज फेल्ड, it was the responsibility and obligation as per the guidelines to conduct retest, to conduct extra classes. ये बीए और ग्रेजुएशन और बीएससी की पढ़ाई नहीं है सर. यहाँ पे competency based skill you have to learn. And apart from that, there has to be, whatever they are saying, there has to be a policy for that. Any policy have been placed before this honorable court that they are taking certain classes and not taking the other classes of extra other classes, or not taking retest? कोई भी नहीं. Or taking examination within 9 months, apart from in violation of the regulation of 18 months. 18 months. Any policy, not only oral submissions have been made before this honorable court in order to place emphasize before this court that only these are the students who are absentees, these are the students who are failure, and other students have excelled in their classes and they have been allowed. There is no provision of aggregation of marks. They are saying that they are aggregating the marks, and how, in what manner? How, in what manner they have aggregated the marks and taken the average out of it? Yes. I would be resting my argument, my lord. Yes, so what is your next number? ये यशस्वी साहू का इसी में कवर हो गया. That is what we are saying, and they had to produce that. So far as the final years are concerned, the internals which they have taken in phase 2, phase 3, part 1, all the exams,
and the marks which has to be distributed as per the NMC guideline, those records. And my lord, this is just they have supplied that NMC has given the relaxation for 18 months. It should have been 11 or 12 months. My lord, may kindly see, it has been just supplied right now across the board. Nowhere it is written in this document. The records are not being placed. Yes. लास्ट में चार्ट बना हुआ था पूरा डिटेल 21 से 24 के बैच का है। नीचे 19 से शुरू है ये 15 से शुरू है 15 से इसकी तक 21 to 20 उसमें कहाँ है ये रिलैक्सेशन होगा कब वो पूरा डिटेल दिया होगा सिर्फ 9 महीने हुए हैं। And my lord, may kindly see the regulation has specified the hours, how the hours is to be distributed in 18 months. Had they covered the hours, informing every college in the initial, at the time of commencement of the course, that this year, 18-year duration is to be covered within 9 months. Therefore, the duration of the classes would be expanded. इसमें तो कहीं भी मुझे नहीं दिखा सर। And that is what we not right from the beginning we are saying our predicament is that documents are being supplied across the board, that this is this, no return is being filed in spite of the fact that everything is यस ठीक है। ये आपको ये तीसरा भी यशस्वी साहू का मेडिकल डॉक्यूमेंट ऑफ इन माय पिटिशन प्रतीक साहू का भी प्रतीक राज सिंह का कहाँ का है रिम्स का ही है there. कौन सा? Third one. एंड वैभव पटेल वैभव पटेल वहाँ का है, जगदलपुर से। वैभव पटेल एंड निखिल वर्मा हाँ, ये जगदलपुर। जगदलपुर का है। इसमें किसमें है आप कम्युनिटी मेडिसिन में फेल है केवल कम्युनिटी मेडिसिन केवल कम्युनिटी मेडिसिन केवल एक सब्जेक्ट, यस कौन है जगदलपुर से बाकी सब में पास। भाई इसमें तीनों साल का अगर आपको काउंट करना पड़ेगा फर्स्ट फेज सेकंड फेज थर्ड फेज तो इसका क्या टोटल मार्क्स क्या है तीनों के सर मेरे पास है जो इनका इंटरनल असेसमेंट बनाते हैं सर वो प्री यूनिवर्सिटी के मार्क्स से बनता है इसलिए बनाते हैं सर क्योंकि अगर टर्मिनल एग्जामिनेशन का अगर देंगे तो सर टर्मिनल एग्जाम में बहुत कम होता है जो इंटरनल असेसमेंट बनता है सर उसका 80% जो रहता है वो आपके पीयू के मार्क्स जो ऑप्टेन आते हैं उसका नंबर से रहता है एंड 20% इट इज फ्रॉम तो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स से कोई वैल्यू नहीं है सर यूनिवर्सिटी एग्जाम में बैठने के लिए बैठने के लिए अगर Yes, कोई sir. इंटरनल असेसमेंट क्लियर नहीं किया यस तो सर उसको आप यूनिवर्सिटी प्री यूनिवर्सिटी में नहीं बैठने देंगे सर उसके दो क्राइटेरिया है एक अटेंडेंस वाला और दूसरा इंटरनल असेसमेंट का दोनों fulfill इंटरनल होना चाहिए असेसमेंट का मार्क्स है जो काउंट तो होते हैं ना यस काउंट होते हैं तो Yes. आप बताइए कि फर्स्ट फेज सेकंड फेज थर्ड फेज में तीनों में कितने मार्क्स इनको मिले ठीक है सर पिटिशनर वाइज हाँ बताइए सर पिटिशनर वाइज पिटिशन 1 वैभव पटेल सर इनका फर्स्ट टर्मिनल में जो मैक्सिमम मार्क्स था जो मैक्सिमम मार्क्स थे सर 100 थे मिनिमम मार्क्स इनको जो लेके आने थे वो 50 लेके आने थे तो सर वैभव पटेल का जो है पिटिशन नंबर 124 है किसमें फर्स्ट टर्मिनल में फर्स्ट टर्मिनल में सर जो एग्जाम होते हैं वो 3 फेज में होते हैं फर्स्ट फेज में कि फर्स्ट टर्मिनल का बता इंटरनल असेसमेंट का यस मिस्टर कहाँ गए मिस्टर दास बताइए आप इंटरनल असेसमेंट सर इनको इनका सिर्फ मार्क्स बताते हैं सर मार्क्स और- बताते हैं तो उसमें और भी तो लिखा है एनएमसी गाइडलाइंस में कि आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है इनको पढ़ाना है और फिर जिससे कि वो पास हो सके एक्स्ट्रा क्लासेस लेने हैं और रीटेस्ट का भी प्रोविजन है रीटेस्ट आपने एक्स्ट्रा क्लास तब करते हैं जब हम इनको अटेंडेंस इनका डेफिशिएंट रहता इनका अटेंडेंस ठीक है सर तो उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है नहीं लिए सर बट हम बच्चों को स्पेशली बोलते थे अगर कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है हमारा डिपार्टमेंट सबमिट है तो बच्चे आगे रीटेस्ट लिया था आपने Yes, sir. रीटेस्ट लिया था नहीं। क्यों नहीं लिया था मतलब जो एक बार फेल हो गया वो फेल हो गया खत्म उसके
उसको फिर से बैठना पड़ेगा 1 साल के बाद। नहीं सर, उनको तो और चांस मिलेगा ना। कब मिलेगा? टर्मिनल है, हाँ, सेकंड टर्मिनल है सर। अगर वो अगर बच्चा मान लीजिए क्वालिफाइंग मार्क्स 50% एग्रीगेट आना चाहिए, फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट में किसी के 10 नंबर आए, 12 नंबर आए, तो सेकेंड और थर्ड में कैसे कवर करेगा वो? आपने नोटिस दिया था इनको, इनके पेरेंट्स को? सर हमने नोटिस नहीं दिया था सर। क्यों जो नहीं दिया बच्चे के था? जो मार्क्स थे हमने स्पेशली इसे साइन नहीं, करवाया। उस समय एज कितनी थी इनकी? 17 17 थे, माइनर थे ना? 18 है। माइनर थे ना? माइनर थे। 18 18 के ऊपर confirm। फीस पेमेंट कौन कर रहा था? फीस कौन दे रहा था इनकी? कि गार्जियन दे रहे थे। सर ये तो गवर्नमेंट कॉलेज है सर। गवर्नमेंट कॉलेज है तो फीस लगता है कि नहीं लगता? लगता है कौन देता है? पर गार्जियन। गार्जियन देते हैं। जब पेरेंट्स देते हैं तो आपने उनको इन्फॉर्म किया? क्यों नहीं किया? रीटेस्ट का प्रोविजन है एनएमसी में, है कि नहीं है? क्यों नहीं लिया? सॉरी सर, नहीं है सर, रीटेस्ट का प्रोविजन नहीं है। क्यों नहीं है? पढ़िए, पढ़ के बताइए मिस्टर श्रीवास्तव, कहाँ पे रीटेस्ट का? The result of IELTS should be displayed on notice board within 2 weeks of the test and an रिजल्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट। हाँ, तो रिजल्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट सर, इंटरनल असेसमेंट इज कैलकुलेटेड ओनली एट द टाइम जब पीयू हो जाता है, प्री यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो जाती है, देन उसके बाद हम इंटरनल फिर असेसमेंट बनाते हैं। इंटरनल असेसमेंट हर जो फर्स्ट रहता है, फर्स्ट इंटरनल असेसमेंट, उसके बाद लिखा हुआ है एनएमसी गाइडलाइंस में, तो उसके बाद आपको नोटिस बोर्ड में डिस्प्ले करना है मार्क्स, किसने कितने पाए हैं। तो आप तो ये तो बोल नहीं सकते हैं कि प्री यू के बाद ही आप सब, प्री यूनिवर्सिटी के बाद आप बताएंगे। लेकिन सर जो इंटरनल असेसमेंट सर, ये जो लाइन पढ़ रहे हैं ना, द रिजल्ट ऑफ इंटरनल असेसमेंट, हम टर्मिनल बोलते हैं सर। जो फर्स्ट, आप कुछ भी बोलिए, एनएमसी में क्या लिखा हुआ है? आप अपने मन से कुछ भी बोलेंगे, अपना कानून चलाएंगे। क्यों नहीं लिया आप एग्जाम? किस पोस्ट पे हैं आप? सर मैं डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट पे हूं। और इससे बड़े आपको कोई अधिकारी नहीं मिले बुलवाने के लिए, मिस्टर दास? He has filed a return and he is in consultation with the dean and all the documents have been prepared and briefing has been done with consultation with dean. You have called useless fellow. यस, रिम से कौन आया? आइए। रिम से कौन आया? कौन ऑफिसर आया? बैठिए, आप बैठिए। बाई मर्सी। My lord, we are only No, saying only but- 16 No, students. are- now, my lord, it is now. I will direct them to take retest. Yes, my lord. जी सर, ये According to- That is out of that, my lord. According to norms of NMC. जी इनके लिए भी वैसे ही करिए, रिटेस्ट कराइए, प्रोविजन तो है। And my lord, there should not be any bias against me. बायस करेंगे तो कोर्ट, doors of this court is open for you. My lord, the worst part is the university, my lord, may kindly see. Thank you. The university, my lord, may kindly see, NMC guidelines have not been followed. तो जब इन्फॉर्म करेंगे तब तो पता चलेगा, जब आपकी नोटिस। So आपने रिटर्न फाइल करके बताया कि यूनिवर्सिटी को जब पता चला उस हिसाब से हमने यूनिवर्सिटी को जब भी इन्फॉर्म किया गया तब उसके बाद हमने एक्शन लिया उसका। और हमने ये सर, यूनिवर्सिटी के साथ से कोई बात पता ही नहीं हर था। नोटिफिकेशन में एग्जाम ये रिटेस्ट का प्रोविजन कहाँ पे है? दिखाइए। एनएमसी गाइडलाइंस में है।
BTS को रिमीडियल में आएगा। Remedial measure में ये remedial measure और 11.1. अभी ये क्या है, एग्जाम ऑफ आर्ट से है, तो ये अभी नहीं होगा, बाद में लीजिए। हम अभी ये नहीं बोल रहे हैं कि तुरंत कल से लीजिए। ये देखिए सर, क्लासेस ये रिजल्ट क्लास कर ले आप और कंप्लीट करिए। इनकी जो कोर्स है उसको कंप्लीट करके लीजिए, फिर से टेस्ट ले लीजिए। सर ये देख लीजिए, यूनिवर्सिटी शैल गाइड द कॉलेजेस रिगार्डिंग फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी फॉर रेमेडियल मेजर्स फॉर स्टूडेंट्स who are either not able to score qualifying marks or have missed on some assessment due to any reason. अगर एब्सेंट हो गए हैं तो आपको रीटेस्ट लेना है। और अगर दूसरा सर ये देखिए, ये रिकॉर्ड अभी तक इन्होंने नहीं किया है। लिखिए। तो सिम्स वाले भी आकर के बोले थे कि ये इस ढंग से इनका इंटरनल असेसमेंट होना है। कोई 100 नंबर का ले रहा है, कोई 20 नंबर का ले रहा है। Wait. ये देखिए, जबकि गाइडलाइन तक है। In all these petitions, the petitioners who are students of MBBS final year part 2 पार्ट 2 have not been permitted to participate in the main examination. Main examination. अब ये देखिए कि ये केवल 1 मार्क्स जो दे रहे हैं, सर आई एम लिविंग इट ऑन योर लॉर्डशिप, आई विल नॉट से एनीथिंग, काइंडली सी माय लॉर्ड, दिस मार्क्स which have been tabled appear to be the staged or not. I will not say That is not anything, the- my lord. Have you raised in ground in the petition about the pattern of marks? You have not raised. You have said, Don't develop you your have, arguments you in have, air. you are given in the, No, no, absolutely not. That you, cannot be you done. are given it in the return. We are- I was not the privy of this. All the respondents, we are at fault, no doubt or partially. We cannot get the whole fault. तो वो cannot तो be ग्राउंड से attributed. जब मार्क्स दे दिए उस पे तो आप क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं सकते। बिल्कुल सर, मैं भी वही कह रहा नहीं सर, मैं क्वेश्चन मार्क नहीं वही लगा रहा question हूँ। mark ये लगा जब रहा हूँ। लास्ट में सब कुछ दे जैसे रहे हैं। आपकी एबिलिटी होगी, जैसी आपकी योग्यता होगी, उसके हिसाब से सर, आपको मार्क्स योग्यता- मिलेंगे। सर एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, आप भले ही उस चीज को, सर एक एक नंबर से प्रैक्टिकल में डेलिबरेट एक्शन नहीं कह सकते आप। मैं डेलिब्रेट एक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप देख लीजिए सर, मैं इसीलिए कुछ नहीं कह रहा हूँ इस चीज को। मैं तो ये चलो कह रहा हूँ कि भाई। जो ये ब्लेम कर, अगर पार्ट 1 में चलो बता ठीक। देते, रेमेडियल एक्शन ले लेते, इंटरनल क्लियर हो जाते। है। माफ सर जो They are not they are trying to play the blame game, my lord. Council appearing for the respondents would argue that the petitioners did not participate in the internal examination as shown in the chart prepared above, comma. Therefore, they could not secure the qualifying marks to appear in the main examination. They would further submit that there was no deliberate intention of the institutions to disqualify or fail any of the students. It is also argued that some of the students did not appear. Some of the students of RIMS College did not remain absent, whereas some of the students, though participated in the internal assessment exam, but could not secure the required marks. They would submit that नोटिस इशू हुआ था इन लोगों को कि आप एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करिए रिम्स में। रिम्स में आपने नोटिस इशू किया था इनको कि एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए। यहाँ पे लाके वो notice बताया, They would submit that on the face of record, they notices were fabricated document.
Notes, yes, yes, ठीक है. Notices were पेज नंबर 81 जो ये बता रही है notices were issued to the students to participate in the extra classes. फिर कोई किए नहीं गाइडलाइन हमको परमिट कर परमिटेड। अच्छा क्या होगा, मैं 2019 बैच हूँ, अब मैं पास आउट होऊंगा 2025 में, अब जनवरी में होगा अगर रात को अगर ऐसा तो मेरा 6 साल ऑलरेडी। साहब आप कुछ लिखे या ना लिखे, तब तो मैं ये कहना होगा कि आई एम द डॉक्टर हु पास आउट आफ्टर 6 ईयर, मीनिंग देयर भाई आई एम नॉट कंप्लीटेड इन 4.5 ईयर। Does मतलब it could be a deeming effect of that I am the मैं backlash. भाई अगर आप 6 साल में पास होंगे Sir, what my तो आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा रहेगा. सर बात एक्सटेंशन की नहीं है सर। सर एक सर सिचुएशन ये है सर कि नेक्स्ट एग्जाम में जो अपीयर होना है 4.5 साल में तो सब पास कर लेते हैं. 6 साल हो गया था। सर एक चीज ये देखिए, जैसे जगदलपुर के जो बच्चे हैं, ये अब अगर मान लीजिए अभी देखिए भाई, यूनिवर्सिटी और एनएमसी परमिट करेगी तभी एग्जाम हो सकता सर है. हम तो ये कह रहे हैं अगर नहीं ऐसा है तो एक बात तो सर मैं ये कह रहा हूँ सर, मेरा तो दूसरा भी सजेशन है कि ये बात तो नाउ इट इज रिट लार्ज, इट इज अपीरेंट ऑन रिकॉर्ड। सर एनएमसी को बोलिए कि एक कमेटी बना करके तुरंत डिसाइड करे कि अब क्या रेमेडियल हाँ, मिलेगा। ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. अब क्या इसकी रेमेडी है, ठीक है, गलती तो ये ठीक इन्होंने है, की है। ठीक है. चलिए, विदिन 10 डेज एनएमसी डिसाइड करे। ठीक है, इसको काट दीजिए. बाकी ये सब काट दीजिए. ये जो एग्जाम वगैरह लेने का इंटरनल का, इसको काट दीजिए. एग्जाम लेने के बाद जो एग्जामिनेशन है वो करेंगे। अच्छा, वहां तक रहने दीजिए. ठीक है. नहीं रिटेस्ट जो भी है, अब ये सब एनएमसी इसका Looking to controversy involved in the present case and further future of the student, National Medical Commission or Council Commission is directed to look into the matter and take decision for final examination of petitioners. within my lord 10 days. It is expected that the commission shall take decision preferably within a period of 30 days. Very much. Very much. The petitioners would be at liberty to make a representation before National Medical Commission within period of 10 days. 10 days. ठीक है. Everything they will see. Mr. Shamrat Singh Marhas, who is appearing for NMC, is directed to communicate this order to the commission. अब करना ना करना एनएमसी का काम है. हमने डायरेक्शन दे दिया है, कर लेंगे, डिसीजन ले लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है. इनका जो ये क्या देखिए फोटो में दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ऊपर में लिख दिया है ना, मिस्टर शमरत सिंह मरहास होल्डिंग ब्रीफ ऑफ मिस्टर रणवीर सिंह मरहास, ऊपर में लिखा रहेगा वैसे ही, और नीचे में आप चलिए डिस्पोज ऑफ. मलॉर्ड जगदल आपके खिलाफ हमने कुछ नहीं किया है. कॉलेज के खिलाफ कॉलेज के तो सफर करना पड़ेगा. इनके हरकतें ठीक नहीं हो गया है, उसको पार्ट हम तो पार्ट 1 बोल रहे थे, तो आप जबरन पार्ट 2 लिखवाए. नहीं फाइनल पार्ट जगदलपुर का फाइनल पार्ट 1 है. देख लेना, एक बार अपलोड करने से पहले दिखवा लेना भाई, गलती वलती ना हो कर लेना. ऑब्जर्वेशन रहेगा ही वो. नहीं आपके यहाँ तो कोई सुधार क्या है. देखिए प्राइवेट कॉलेजेस है ना, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये मतलब एक्स्ट्रा स्मार्ट. अब सोचते हैं कि हम जैसा चाहें वैसा कॉलेज चलाएंगे, हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है. यूनिवर्सिटी तो कुछ करती ही नहीं है. यूनिवर्सिटी को तो यही पता नहीं कि क्यों. नोटिफिकेशन में लिखते हैं आप सर, प्रॉपर्ली उनको नोटिफाई कर दो. तो यूनिवर्सिटी को तो खुद ही पता नहीं होगा कितनी मेडिकल कॉलेज हैं. 2024 को पहले लिख दिए सर, आप पहले सारे Greatly obliged.
नहीं डिलीट तो नहीं करेंगे शर्मा जी। मैं थोड़ा भाई म्यूट कर दिए मैडम। Right.